held at Mahmood Hall, London, organized by Majlis Ansarullah UK. یہ مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ انٹرنیشنل ہے. آپ پیش خدمت ہے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز کی ایک مجلس سوال و جواب. یہ مجلس انصار اللہ یو کے تحت حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز نے محمود ہال لندن میں ارشاد فرمائی تھی. ملاحظہ فرمائے مجلس عرفان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تشریف رکھیں. امام صاحب آئیے. امام صاحب کہاں ہیں؟ ابھی بیٹھ جائیں. چلو اس کے لیے ساتھ آپ کے پاس وہ حوالوں کا بکشا بھی ہے. جی میرا خیال ہے تعارف تو سب ہو چکے ہیں اور اب سوال جواب کی مجلس ہے. جو مہمان بھی چاہتے ہیں کچھ پوچھنا ہو تشریف لائیں. آپ کارروائی جاری کریں. السلام علیکم. آصف عزیز نیو ہیم سے تشریف لائیں اور اپنا سوال پیش کریں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص حدیث کا منکر ہے تو مسیح موعود کے دعوے کی صداقت قرآن کی روشنی میں کیسے ثابت کی جا سکتی ہے؟ اس سوال کے دو پہلو ہیں. اگر حدیث کا منکر ہے تو قرآن کا صوفی قائل بھی نہ رہا. یہ مسئلہ ہے. اس کو تو پہلے قرآن کا قائل کرنا ضروری ہے ان معنوں میں کہ وہ جو حدیث روشنی ڈالنے والی قرآن کی آیات ہیں اور حدیث کی ضرورت کو ثابت کرتی ہیں. ان کو سمجھے بغیر بات مکمل نہیں ہو سکتی. کیونکہ واقعہ یہ ہے کہ اگر قرآن بھی پیش کیا جائے تو قرآن کی آیات کے مختلف معنی مختلف لوگ کرتے ہیں اور ایک ہی آیت کے متفرق معنی موجود ہیں ہماری تفاسیر میں بھی. تو منکر حدیث کے لیے یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے تم نے یہ معنی کیے میں یہ معنی کرتا ہوں. تو قرآن بھی اس کو کافی نہیں. جو قرآن اور حدیث کو الگ کر دے وہ بد نصیب ہے. کیونکہ قرآن کریم نے خود یہ فرمایا ہے کہ ایسا شخص جو خدا اور رسول کے درمیان فرق کرتا ہے وہ ایمانداروں میں سے نہیں ہے. اب سوال یہ ہے وہ کون فرق کرنے والا ہے؟ مثلا قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو تمہیں اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت تو سمجھ آ گئی. قرآن اللہ کا کلام ہے. رسول کی اطاعت پھر کیا چیز ہے؟ اگر حدیث کا کوئی وجود نہیں، اگر سنت کو کوئی اختیار نہیں ہے تو پھر وہ اطاعت جو رسول کی اطاعت ہے وہ کیا چیز ہے؟ کیوں خدا تعالیٰ فصیح و بلیغ کلام میں بے زائد الفاظ استعمال کرتا ہے کہ یہ کافی تھا اللہ کی اطاعت کرو. اور اگر فرق ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے امت کے درمیان، حکومت اور لوگوں کے درمیان، تو قرآن کریم فرماتا ہے وَإِذَا تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ. یہ آیت میرے پیش نظر ہے. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. فَإِذَا تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا آپس میں اختلاف ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اب یہ ایک جاری حکم ہے. یہ مراد تو نہیں تھی کہ صرف رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اختلاف ہو تو پھر رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرو. یعنی قرآن صرف اس زمانے کے لیے محدود ہو گیا اور آئندہ کے تنازعات کا کوئی حل نہ پیش کیا. یہ نتیجہ نکلے گا نا اس کا. تو لیکن اگر بات کے تنازعات پیش نظر ہیں تو اللہ کی اطاعت تو قرآن سے مل جائے گی. رسول کے سامنے کیسے جھگڑا پیش کرو گے؟ اس لیے بنیادی بحث سے بات ہونی چاہیے.
वरना हम जितनी चाहें दलीलें कुरान से निकालते रहें, अहले कुरान ये कहता रहेगा कि नहीं मैं इसका कायल नहीं, मैं इसका ये मतलब समझता हूं। अगर हदीस तायीद कर दे और इंसान दलील के साथ हदीस का कायल हो तो उसके लिए फिर निकलने की राह कोई नहीं रहती। इसलिए हर शख्स को उसके अकल, उसके हालात के मुताबिक पहले समझाना ज़रूरी है, वरना फिर उससे बात करना बेकार है। मेरा तजुर्बा है अहले कुरान से यही कि लाख दलीलें कुरान से पेश करो, वो कहते नहीं हम इसका ये मतलब समझते हैं, और कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी हम बात माने कुरान के मतलब के तौर पर। तो कुरान जिसको वो वजह इत्तेफाक बताते हैं, अमलन उसको वजह इख्तलाफ बना लेते हैं। इसलिए रूहानी अथॉरिटी का आना इसलिए भी ज़रूरी है। इमाम महदी का तसव्वुर ये माने भी रखता है कि जब कौम में इख्तलाफ पैदा हो जाएंगे तो जो अल्लाह से हदायत पाएगा वो इस बात का मुख्तार होगा खुदा की तरफ से कि इख्तलाफात का बीच में फैसला करे। यही वजह है कि अहादीस में मुनकिरीन हदीस को फिलहाल छोड़िए, आप तो मुनकिर हदीस मालूम नहीं होते। अहादीस में वाज़े तौर पर मसीह के मुतल्लिक भी और महदी के मुतल्लिक भी हकमन अदलन के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। वो क्यों आएंगे? वो उनके इख्तलाफात के बीच में अदालत की कुर्सी में बैठेंगे, वो फैसले करेंगे कि कौन कुरान की रूह से सच्चा है, कौन कुरान की रूह से गलत है, कौन हदीस की रूह से सच्चा है, कौन हदीस की रूह से गलत है। बस कुरान का नाम रखकर वो बज़ाहिर ये कहते हैं कि इत्तेफाक की बुनियाद कुरान पर है, हदीसें छोड़ दो तुम इकट्ठे हो जाओगे। और जब कुरान पर आते हैं बगैर हदीस के तो किसी आयत के मतलब पर भी वो इकट्ठे नहीं होते। इसलिए महज नफ्स का बहाना है। और क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ वहीं तक महदूद था जिस ज़माने तक आप इस दुनिया में रहे? क़यामत तक का रसूल होने का मतलब फिर क्या रहा? किताब तो वैसे ही उतर आती, लोग तो मुतालबे करते थे कि बनी बनाई किताब उतरे, मगर रसूल के बगैर किताब की हकीकत मालूम नहीं हो सकती। रसूल के बगैर किताब पर अमल मुमकिन ही नहीं है। नमाजें क्या चीज़ हैं, इबादतों की तफासील क्या हैं, कुरान करीम में कहाँ तफासील मौजूद हैं? जो कुछ हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते हमने देखा, जैसा उन्होंने कुरान समझा उसी के मुताबिक अमल की वजह से हमने कुरान का फैज़ पाया है। इसलिए जिसको कुरान अता किया गया उसके फैज़ के बगैर कुरान का फैज़ हासिल करना एक धोखे वाला दावा है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। ठीक है, अब और भी सवाल होंगे। अगर इस सवाल को आप दूसरी तरह से दोहराना चाहें कि कुरान और हदीस से मुश्तरका दावे दिखाओ तो फिर मैं बाद में बात करूंगा। ठीक है, हजूर दूसरा सवाल खावर जफर साहब ऑफ टूटिंग का है, वो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, तशरीफ़ लाएं। कह रहे हैं कि मैं पढ़ दूँ। हाँ ठीक। इनका सवाल है हजूर के जो ये आयत है वमा काना मोहम्मदिन आबा हदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबिय्यीन, बराए मेहरबानी इस आयत से खातिमुन नबिय्यीन का जो मैनी अहमदी करते हैं और जो गैर अहमदी करते हैं इसका मुख्तसरन मुआवजना फरमावें। मुख्तसर की शर्त मुश्किल है, बाकी बातें आसान हैं, क्योंकि अगर आपने बात समझनी हो तो ज़रूरी है कि इसके सब पहलुओं पर रोशनी डाली जाए। ये बुनियादी वजह इख्तलाफ है जो अहमदियों और गैर अहमदी उलमा के दरमियान बयान की जाती है। बयान की जाती है का क्या मतलब है, मुझे ये भी समझाना होगा। मेरे नज़दीक आयत खातमुन नबिय्यीन पर फिल हकीकत कोई भी इख्तलाफ हमारे दरमियान और दूसरे उलमा के दरमियान नहीं है।
पहले ये बात आपको समझा दूं, इसलिए नहीं है कि इसका ये मतलब करने के बावजूद कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हर किस्म की नबूवत हमेशा के लिए ख़त्म है। ये तर्जुमा करने के बावजूद जब आप उनसे मज़ीद पूछें कि क्या मसीह आएगा या नहीं आएगा, कहते हैं ज़रूर आएगा। अगर हम इनकार कर दें तो काफिर हो जाओगे। वो नबीउल्लाह होगा या उसकी नबूवत आसमान पर ही रह जाएगी। वो कहेंगे बिला इस्तिस्ना, हर मौलवी शिया हो या सुन्नी ये कहेगा कि लाजिमन वो नबीउल्लाह होगा। जो उसकी नबूवत का इनकार करेगा वो दायरा इस्लाम से खारिज हुआ। ठीक है ना ये बात। अब बताइए, हम भी तो मसीह को नबीउल्लाह कह रहे हैं। हम हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को मसीह मौद मानते हैं। वो कहते हैं मसीह मौद मानो, नबीउल्लाह क्यों मानते हो? और जो उनका आने वाला है उसको अभी भी नबीउल्लाह, खुद भी नबीउल्लाह मानते हैं। तो इख्तिलाफ क्या हुआ? आयत खातम नबीयीन के होते हुए भी ये तमाम उलमा बगैर इस्तिस्ना के उस मसीह को जो इनके नज़दीक अभी नहीं आया लेकिन कल परसों कभी तो आएगा, वो कहते हैं जब आएगा वो ज़रूर नबीउल्लाह होगा। फिर हम पूछते हैं इख्तिलाफ क्या है? वो कहते हैं इख्तिलाफ फिर इतना बना कि हमारा अकीदा ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी उम्मती को नबी का लक़ब अता नहीं हो सकता, नबी नया नहीं बन सकता। वो कहते हैं इसलिए पुराना नबी आएगा। अब इस बात में कोई अदना सा भी गौर करे तो एक हैरत अंगेज तजाद मालूम होता है और एक बेअक्ली की बात मालूम होती है। अगर नबी आने बंद हो गए हैं तो क्यों बंद हुए? एक ही वजह है, वजह फजीलत अगर उसको कहा जा सकता है कि ऐसा नबी आया जिसके बाद हमेशा के लिए नबूवत की जरूरत खत्म हो गई। अगर वो ये माने तो उनके और हमारे दरमियान फिर इख्तलाफ होगा, मगर जरूरत के वो भी कायल हैं, हम भी कायल हैं। हम भी कहते हैं नबूवत की जरूरत रहेगी और यकीनन आप भी यही मान रहे हैं कि जरूरत होगी। तो इख्तलाफ ये नहीं है कि नबी आएगा कि नहीं, इख्तलाफ ये है कि उम्मती को नबी बनाया जाएगा या मूसा की उम्मत से उधार मांगा जाएगा। ये फर्क है सिर्फ। इसमें खातम नबीयीन का फर्क कहां से हो गया? सिर्फ इतना फर्क है। और मैं तकरार करता हूं इस बात की, आप बेशक पूछ के देख लें, वो तमाम के तमाम एक नबी की जरूरत को मानते हैं, जानते हैं कि एक नबी जरूर आएगा। वो कौन होगा ये बहस है। हम कहते हैं उम्मत मोहम्मदिया में पैदा होगा और उसको नबूवत का लक़ब मिलेगा। वो कहते हैं उम्मत मोहम्मदिया में कोई माँ नबी पैदा नहीं कर सकती अब, इसलिए अल्लाह की मजबूरी है गोया के, क्योंकि नबूवत की जरूरत पेश आ गई, नबी बन नहीं सकता। खुदा ने एक पुराना नबी उठा रखा है और वो नबी कौन है? मूसा की उम्मत का नबी। वो नबी जिसको कुरान करीम आज भी यही फरमा रहा है, रसूलन इला बनी इसराइल। मसीह कौन है? बनी इसराइल का रसूल। अब अगर उनका मसीह उतर भी आए तो नबूवत वाली बात तो फिर भी वही रहेगी। पुराना आए या नया आए, जो पुराना आएगा वो रखना डालेगा नबूवत में। उम्मत मोहम्मदिया में नबी का पैदा होना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के खिलाफ नहीं है। बाहर से कर्ज मांगना, जरूरत हो और घर में बच्चा ना संभाल सके उस जरूरत को, ये उम्मत मोहम्मदिया की गुस्ताखी है। अगली बात जब और खोलता हूं तो फिर आप हैरान रह जाएंगे कि इस अकीदे को सुनकर आपके दिल में तवज्जो क्यों ना पैदा हुई कि इसको सवाल तो करके देखें कि क्या अकीदा हम लोगों की तरफ मंसूब हो रहा है। लेकिन आपकी तरफ मौलवी ये बात मंसूब कर रहे हैं। जब आप उनके पीछे लगे तो उनके अकीदे के पीछे भी लग गए। वो ये कहते हैं
कि मसीह पुराना उतरेगा, वजह यह है ज़रूरत है, और अगर बेज़रूरत नबी रखा हुआ है तो फिर ये खुदा की अकल के खिलाफ बात है। ज़रूरत है तो नबी आएगा, पुराना आएगा। अगर आप कुरान से उस नबी को जो उतरेगा ये आयत निकाल के दिखा दें कि रसूलन इला बनी इसराइल, तो वो क्या जवाब देगा आपको? वो ये कहेगा कि अब मेरी नबूवत फैला दी गई है, पहले मेरी नबूवत महदूद थी, तो फिर नई नबूवत हो गई। पहली नबूवत कहाँ रही? पहली नबूवत महदूद बनी इसराइल की नबूवत है, और जब तक उसको नई नबूवत अता ना हो वो उम्मत मोहम्मदिया में आकर हुक्मरानी नहीं कर सकता। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पहले नबियों के दरमियान हम जब फ़र्क दिखाते हैं तो एक बड़ा अहम और बुनियादी फ़र्क ये बताते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले और वाहिद नबी हैं जो तमाम बनी नौ इंसान के नबी बनाए गए। इससे पहले कभी किसी को तमाम बनी नौ इंसान की हुक्मरानी नहीं बख्शी गई। ऐसी कतई और हकीकी बात है कि इस पर मुतअस्सिब से मुतअस्सिब मौलवी भी इख्तलाफ राय नहीं रख सकता। दुरुस्त है, ईसा उनमें थे कि नहीं थे? अगर थे तो ये इनकलाब कब आया कि ईसा जो बनी इसराइल का महदूद नबी था वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की आलमी नबूवत में शरीक हो गया। शरीक वो होता है जो बाहर से आता है। बेटा अपने बाप की दौलत में वारिस कहलाता है, शरीक नहीं हुआ करता। इसलिए जो हमें जो कहते हैं शिरक फिर नबूवत करते हो, खुद मुशरिक फिर नबूवत हैं और अव्वल दर्जे के। और फिर आगे देखें इसका मतलब क्या बनता है। क्या ईसा नबीउल्लाह पर आसमान पर कुरान करीम नाजिल किया गया था जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ? नहीं किया गया। जब उसको तालीम और दी गई थी, और कुरान फरमाता है उसको इंजील की तालीम दी गई थी जिसमें उस पर फर्ज किया गया था कि वो बाइबल पर अमल करे। और ये आयत कुरान करीम में मौजूद है कि उसने दावा किया कि मैं बाइबल में एक शोशा भी इजाफे के लिए या इसको कम करने के लिए नहीं आया। मुसल्लमा अकीदा है ये। तो उसको नई नबूवत कहते हैं दी जाएगी, उसको कुरान दिया जाएगा। और चूंकि उसने नबी गैर नबी से तालीम हासिल नहीं किया करता कलाम इलाही की, इसलिए ये अकीदा इन्होंने बनाया है कि कुरान उस पर दोबारा नाजिल किया जाएगा। अगर नहीं किया जाएगा तो उसको क्या पता कुरान क्या है? उसको तो बाइबल का पता है। कुरान का तो इशारतन भी उसको कोई कुछ बताया ना गया पहली जिंदगी में। नया आया है तो गोया नया कुरान लेके आया है। कुरान वही सही जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर मसीह पर जब तक खुदा बरह रास्त कुरान करीम नाजिल न करे उसको कुरान की तालीम का कुछ पता नहीं। तो वो शरीक मुकम्मल बन जाता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उस पर एक दफ़ा फिर कुरान नाजिल किया जाएगा, और वो जिसकी हुकूमत बनी इसराइल तक महदूद थी वो कुल आलम पर हुक्मरान होगा। ये नबी पुराना नबी नहीं है, ये नया नबी है। और आखिरी नबी जो इस हैसियत से दुनिया देखेगी वो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं होंगे, बल्कि ये नबी होगा। इसलिए ये इख्तलाफ जो है ये महज लफ्जी भी है, और ज़्यादा आगे जाके देखें तो बहुत गहरा हो जाता है, मगर मसीह के गिर्द। अकीदे के लिहाज से कोई इख्तलाफ नहीं। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी ये भी मानते हैं और हम भी मानते हैं। हम ये कहते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी गैर कौमों से गैर उम्मतों से नहीं आ सकता। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। जो भी मुस्लिह पैदा होगा इसी उम्मत में पैदा होगा। जो भी फैज़ पाएगा मोहम्मद रसूलुल्लाह से पाएगा, आपके कुरान से दीन सीखेगा।
और इस हैसियत से वो अतात में जब बढ़ जाएगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ज़्यादा नज़दीक हो गया था। अतात में जब बढ़ जाएगा तो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में उसको वही काम करना होगा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का काम था। वो क्या है, लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही, ताकि दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम दुनिया पर गालिब कर दे। ये हमारा अकीदा है। अब मैं आयत खातम नबीन की तरफ आता हूँ। पहले मैं दोनों के अकीदे की तशरीह बता रहा था कि फ़र्क है तो क्या है। आयत खातम नबीन का ये तर्जमा जो वो करते हैं कि वो नबी आया जिसने पहले सब नबियों को ही नहीं बल्कि नबियों का बीज ख़त्म कर दिया, तुख्म नबूवत ख़त्म हो गया, और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने नबी थे उन सब को ख़त्म कर दिया। ये मानते हैं कि नहीं? कैसे ख़त्म किया? जिस्मानी तौर पर या रूहानी तौर पर? दो ही माने हो सकते हैं। जिस्मानी तौर पर ख़त्म किया तो सब नबी तो अपनी मौत खुद ही वफात पा चुके थे। एक ही टेस्ट केस बाकी था, ईसा अलैहिस्सलाम, इनके नज़दीक, हमारे नज़दीक नहीं। हम कहते हैं जिस्मानी तौर पर भी कुल नबियों को बिला इश्तिबाह ख़त्म कर दिया, यानी एक नबी भी आपकी उम्र से गुजर कर जिंदा नहीं रहा। आपकी पैदाइश से पहले फौत हो चुका था, आपकी नबूवत से पहले फौत हो चुका था। ये मौलवी जो हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं, ये कहते हैं कि नहीं, एक नबी जिंदा था, वो जिंदा था, जिंदा रहा इनके कौल के मुताबिक। तो किसने किसको ख़त्म किया? वो नबी जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 570 साल पहले इनके बयान के मुताबिक पैदा हुआ, और 570 साल की उम्र में वो आसमान पर बैठा हुआ देख रहा था, और उसके सामने एक बच्चा पैदा होता है, उसके सामने जवान होता है, अपनी नबूवत का दौर ख़त्म करके गुजर जाता है। तो किसने किसको ख़त्म होते देखा? इनके कौल के मुताबिक नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक ईसा अलैहिस्सलाम ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म होते देखा, और वो दोनों ये दावे आ हज़रत के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्होंने जुटा दिए। आप फरमाते हैं मैं पहला भी हूँ और आखिरी भी हूँ। अगर जिस्म के लिहाज से ये मानते हैं तो पहला तो मसीह था, पहले पैदा हुआ, और मौत के लिहाज से मानते हैं तो आखिरी मसीह हुआ, बाद में मरा, इनके कौल के मुताबिक। तो खत्म नबूवत का तो इन्होंने कुछ भी बाकी न रहने दिया। अगला कदम फैज का। सब नबियों के फैज कुरान करीम के नज़ूल से पहले ही खत्म हो चुके थे। कुल अंबिया अपने फैज का दौर खत्म करके अपनी सफ़े लपेट के जा चुके थे। एक मसीह ही बाकी था ना। ये कहते हैं उसका फैज ना सिर्फ ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्म नहीं कर सके, बल्कि बराह रास्त उसने खुदा से वो फैज पाया जो पहली जिंदगी में उसको हासिल नहीं था। फैज में बढ़ गया, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद आपकी उम्मत को जिंदा करने में बुनियादी किरदार मसीह अदा करेगा। गोया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तो मर रही थी, उसमें सांस लेने की ताकत नहीं रही थी। जिंदा किया तो मूसवी उम्मत के मसीह ने। तो फैज कैसे खत्म किया? ना जिस्म खत्म कर सके, ना फैज खत्म कर सके, और दावा यह है कि हम खत्म नबूवत के कायल हैं। गलत कहते हैं। मैं उलमा को बारहा ये कह चुका हूं कि इस मामले पे गुफ्तगू करो, मैं साबित करूंगा कि तुम्हारे मानों में भी जो हम माना करते हैं वो बहुत बुलंद है, जो तुम माना करते हो उसमें भी हम कायल हैं, तुम कायल नहीं हो। और वो खत्म का माना खत्म करना, जैसे कि मैं बयान कर रहा हूं, ये करते हैं। और मैं साबित कर चुका हूं कि ना वो जिस्म को खत्म मानते हैं जिस्मानी लिहाज से, ना रूहानी लिहाज से।
जमात अहमदिया दोनों लिहाज से आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातम मानती है, और कुरान करीम में खातमुन नबूवत नहीं लिखा गया, खातमुन नबीयीन लिखा गया है। अन नबीयीन, जितने भी नबी थे, कुल्लुहुम, उन सबको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त्म फरमा दिया। और हम कहते हैं कि ईसा आपसे पहले वफात पा चुके थे, इसलिए कोई नबी भी जिस्मानी लिहाज से आपसे आगे नहीं निकल सका। रूहानी फैज़ आपकी उम्मत तक महदूद रहा, और उसमें भी मूसा ईसा को तो ये भी तौफीक न मिली कि 30 से ज़्यादा अपने मुतबईन पीछे छोड़ कर जाता, और रूहानी लिहाज से बहुत कुर्बानी करने वाला मगर कामयाबी के लिहाज से एक बेताकत नबी दिखाई देता है। उसके विसाल के बाद लंबे अरसे के बाद फिर रफ्ता रफ्ता खुदा ने गलबा अता किया है, मगर जिंदगी में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को शरफ नसीब न हुआ। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदगी में ये शरफ नसीब हुआ कि आंखें बंद नहीं की जब तक अरब में वो इनकलाब बर्पा न कर दिया जिसका बीड़ा तन्हा उठाया था, और हैरत अंगेज इनकलाब था जो अरब की हदों से छलांग लगाकर एक तरफ किसरा की हुकूमत में दाखिल हो चुका था, दूसरी तरफ कैसर की हुकूमत में दाखिल हो चुका था। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ये वाक़या हुआ है। उस नबी की खिदमत की उम्मत को जिंदा करने के लिए मसीह को लाया जाना था। एक लगफ ख्याल है, जमात अहमदिया इसको रद्द करती है, इसको आयत खातमुन नबीयीन के मुनाफिक करार देती है। हम क्या माने समझते हैं? अव्वल वो माने समझते हैं जो अरबों में राइज थे और आज भी राइज हैं। खातम का लफ्ज कुरान ने इजाद नहीं फरमाया, एक अरब मुहावरे को इस्तेमाल फरमाया है जिसको सब अरब जानते थे। खातम का लफ्ज अरब बेहतरीन के मानों में इस्तेमाल करते हैं, जिससे ऊपर कोई ना हो, यानी मकाम के लिहाज से आखिरी हो। चुनांचे अबू अली सीना जो मशहूर तबीब बल्कि अतिब्बा के बाप माने जाते हैं, उनको खातम अल अतिब्बा लिखा जाता है। मुतनब्बी शायर जो अरबों का शायर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आया है। खातम का माना अरबों पे रोशन हो चुका था, इसके बावजूद उसके दीवान उठाकर देख लें, खातम शुअरा अल मुतनब्बी, तमाम शुअरा का खातम। आगे देखें, हमारे ज़माने में हमारे मुल्क में हकीम अजमल खां पैदा हुए। दिल्ली में बहुत चोटी के हकीम थे जिनका आज तक नाम, उनके नाम का डंका बजता है तिब में। उनके जो बयाद है उसके ऊपर लिखा हुआ है खातमुल हुकमा या खातमुल अतिब्बा, दोनों में से हकीम अजमल खान साहब। तमाम अरब इस्तेमाल को देख लें, एक जगह भी इस आयत जो मुतनाज़ा फी है इसको छोड़कर अरब इस्तेमाल में खातम का मतलब ज़मानी लिहाज से आखिरी कहीं नहीं मिलेगा, मर्तबे और मकाम के लिहाज से आखिरी ज़रूर मिलेगा। यानी जब अरब शायर को खातम कहते हैं तो मुराद ये है कि इस कमाल का शायर अब कभी नहीं आ सकता। शागिर्द आ सकता है, हमसर नहीं आ सकता, उस्ताद नहीं आ सकता। ये सनद है, ये सनद चलेगी, खातम यानी मोहर उसकी चलेगी, और इसके मुकाबले पर जो भी दावा होगा वो गिर जाएगा। जिसको तस्दीक ना हासिल हो इस शायर की, वो बेमानी है। तो वो असातिज़ा जिनकी सनद चलती है उनको खातम कहा जाता है। वो अतिब्बा जिनकी सनद चलती है, जो अपने मजमून में दर्जा कमाल को पहुंच जाते हैं, उनको खातम कहा जाता है। और एक इस्तेमाल खातम का खुद हजरत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से भी सुनिए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुखातब करके फरमाया, अंता खातमुल औलिया। एक रवायत में है
फरमाया अंता खातमुल असफिया, बात एक ही है, दोनों रवायतें मिलती हैं। अगली बात सुनने वाली है, कमा अना खातमुल अंबिया, जिस तरह मैं खातमुन नबीयीन हूं, ए अली तू वलियों का खातम है। अब खातम का तर्जमा वो लगा के देखें जो मौलवी करते हैं, क्या मतलब बनेगा? कमा का लफ्ज भी आ गया है, जैसा मैं वैसा तू, खातम में हम बराबर हैं, लेकिन मैं नबियों का खातम, तू वलियों का खातम। तो मतलब ये बनेगा कि ए अली, जिस तरह मेरे आने के बाद, इन मौलवियों के तर्जुमे के लिहाज से, जिस तरह मेरे आने के बाद हर किस्म की नबूवत की अता खत्म हो चुकी है, हाँ पुराना नबी आ सकता है, उस तरह ए अली मेरे बाद, तेरे बाद वलायत की सफ इस्लाम से लपेट दी जाएगी। अला इन्ना औलिया अल्लाह है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून का दावा बेकार जाएगा, कुरान करीम गलत निकलेगा, नाउज़ुबिल्लाह। कोई वली पैदा नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैं आखिरी नबी हूं उस तरह तू आखिरी वली उम्मत में है, इसके बाद कोई उम्मत का कोई शख्स कभी वली का मुंह नहीं देखेगा। ये तर्जुमा काबिल कबूल है, तस्लीम कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं। क्या वलायत भी खत्म हो गई? नबूवत तो गई, नबी नहीं आ सकता तो क्या वली भी कोई नहीं आएगा? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अली को कि ए अली तू खातमुल औलिया है। बस खातम का माना अगर वो माने जो मौलवी करते हैं तो मतलब ये है तू आखिरी वली है, अब कभी कोई वली नहीं आएगा, और ये झूठ है। वो माना करना पड़ेगा जो दोनों जगह बराबर इखलाफ पाए। गज कपड़ों से तो नहीं बदला करता, गज तो उतना ही रहता है। रेशम नापो या खद्दर नापो, इसलिए लफ्ज़ खातम वही है जो दोनों जगह बराबर इस्तेमाल होगा। जमात अहमदिया के नज़दीक खातम के मानी जो मारूफ और राइज हैं वो यहाँ चलते हैं। एक माना मैंने बताया है सबसे ऊपर, सबसे बाला, जिसका मसलक आखिरी मसलक शुमार हो, जो आखिरी मानवी सनद बन जाए। तो मुराद यह है कि जिस तरह मैं नबियों के लिए एक सनद बन गया हूं, मेरे हवाले के बगैर कोई नबी सच्चा नहीं हो सकता। जब तक मेरे आसार उसमें न पाए जाएं, जब तक मेरी तस्दीक न पाई जाए, किसी की नबूवत सच्ची नहीं। इस तरह वलायत में जो तेरा मुखालिफ होगा, जिसमें तुझसे मुखालिफ आसार वलायत होंगे और वो कहेगा मैं वली हूं, तो झूठ बोलता है। इस नुक्ते को समझकर तमाम झूठे सूफिया का पोल खुल जाता है। वो जो हजरत अली के पैराव होकर मुल्तान में नाचते फिरते हैं और चिमटे बजाते हैं और अली का नारा बुलंद करते हैं, वो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत के मुखालिफ चलकर साबित कर देते हैं कि वो वली नहीं है, क्योंकि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को खातमुल औलिया करार दे दिया। बस अगर हिकमत से बात समझें तो बड़े फवायद हाथ आते हैं। अगर बेहिकमत की बात करके तासुब के पीछे चलें तो सारा फैज हाथ से जाता रहता है। अब आगे चलते हैं। लफ्ज़ खातम के और क्या माने हैं? अंगूठी जिसके ऊपर कुछ लिखा हो, कहीं लगाएं तो वो मोहर तस्दीक बन जाती है। ये बहुत ही अजीमुशान दावा है जिसकी नज़ीर दुनिया में किसी नबी में नहीं मिलती। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया का मुसद्दिक करार दिया गया है। मानवी लिहाज से पहले बता चुका हूं, अब ज़ाहिरी मानों से भी मुसद्दिक करार दिया गया। आपकी मोहर तस्दीक हो तो नबी है, वरना नहीं है। और मैं बारहा मज़ाहिब को चैलेंज दे चुका हूं, आज तक किसी एक ने भी इसके जवाब में कुछ पेश नहीं किया। वो ये है कि एक नबी मुझे दिखाओ कुल आलम में जिसने कुल आलम के नबियों की तस्दीक की हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा एक भी नहीं है। हजरत अकेले नबी हैं जिन्होंने कहा कि मुझे मानो तो ये काफी नहीं है,
मैं भी तस्दीक करता हूं कि अल्लाह ताला ने तमाम जहानों में हर जमाने में नबी भेजे हैं। तुम भी तस्दीक करो कि अल्लाह ताला ने तमाम जबानों में हर मकाम, हर मर्तबा, हर बस्ती में नबी भेजे हैं। ये मानोगे तो मेरा ईमान कबूल होगा, वरना मेरा ईमान भी रद्द है, यानी मुझ पर ईमान लाना भी रद्द है। आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मोमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रुसुलिहि। देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह इस शान के नबी हैं कि वो ईमान ले आए हैं अल्लाह पर और मलाइका पर और कुतुब पर और तमाम अंबिया पर, और आपके मानने वाले भी सब के सब मजबूर हो गए हैं कि वो इन सब बातों पर ईमान लाएं, और दावा ये करते हैं ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रुसुलिहि, हम खुदा के भेजे हुए में से किसी में कोई तफरीक नहीं करते। जो उसकी तरफ से आया उसके सामने तेरे तस्लीम खान, उसको मानना पड़ेगा। ये है खातम नबी। अगर कोई और है तो निकाल के दिखाओ। माना वो जो कुल आलम पे इस्लाम की फतह को साबित करते, उसकी बर्तरी को साबित करते, कोई मजहब सामने सर ना उठा सके। वरना ये दावा के बाद में कोई नबी नहीं होगा, इसकी क्या दलील है? किसने सारा जमाना देखा है? कोई भी नहीं मानेगा, ना मानता है। पहले ईमान लाओ तो फिर मानते हो, वरना अपनी जात में इस्लाम की बर्तरी साबित करने के लिए इस बात में, इस दावे में कोई भी दलील नहीं। लेकिन जो मैं बता रहा हूं माना, उसकी रूह से कुरान सब कुतुब से अफजल हो जाता है कि बाकी किताबों की तस्दीक की है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सब दुनिया से अफजल हो जाते हैं क्योंकि सब नबियों की तस्दीक की है। और इसी दावे में खातमुन नबीयीन में आपका आलमी होना मुज़मिर है, इसके अंदर शामिल है। क्योंकि आज कोई नबी भी आलमी होने का दावा इसलिए नहीं कर सकता कि अगर वो ईसा हैं फर्ज करें, तो उसकी बात जिस तरह ईसाई आज पेश कर रहे हैं और जो बाइबल से मिलती है वो ये है कि उसने किसी और कौम के नबी का जिक्र ही कोई नहीं किया। बाकी सबको झूठा मानोगे तो ईसा को सच्चा मानोगे, अगर किसी और को सच्चा मानोगे तो ईसा को झूठा मानना पड़ेगा। बैन ही यही हाल हर दूसरे नबी का है। उसने अपनी तस्दीक करवा ली और उसकी कौम उस पर राजी हो गई, वो जमाना लद गया, खत्म हो गया। आज उस नबी को ये तौफीक हो ही नहीं सकती कि आलमी होने का दावा करे। अगर ईसा ये दावा करता है मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो पता है मुसलमानों को क्या कीमत देनी पड़ती है। मुसलमानों को मोहम्मद रसूलुल्लाह से दामन छुड़ाकर फिर ईसा को मानना पड़ता है। अगर एक हिंदू तस्लीम करता है, उसको कृष्ण से दामन छुड़ाकर ईसा को मानना पड़ेगा। बैक वक्त दोनों को नहीं रख सकता। एक बुद्ध तस्लीम करता है तो बुद्ध से पीछा छुड़ाकर ईसाई होना होगा। लेकिन एक मुसलमान अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन पकड़ता है तो ईसा को छोड़ना नहीं पड़ता, ईसा को लाजिमन पकड़ना पड़ता है। बुद्ध को भी सच्चा मानना पड़ता है, कृष्ण को भी सच्चा मानना पड़ता है, जरतश्त को भी सच्चा मानना पड़ता है। ये आलमी मजहब है, तमाम कौमों को एक हाथ पर इकट्ठा करने वाला। तो खातमे नबीयीन की आयत तो अजीम शान आयत है। इसके इतने बतन हैं, इतने इसमें रूहानी मताले भी इकट्ठे हो गए हैं कि अगर आप अकल से और दिल की गहराई से गौर करें तो इस शान की आयत दुनिया में कभी किसी नबी को अता नहीं हुई। आखिरी होने के दावे से नहीं, उसको तो खुद ही रद्द कर बैठे इन मानों में जो मैं बयान कर रहा हूं। फिर खातमुन नबीयीन किस मौके पर बयान हुई है? वो आयत जो आपने पढ़ी है, वो आयत यूं है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमुन नबीयीन। क्या मतलब है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम जैसे मर्दों में से किसी के बाप नहीं। आमतौर पर तर्जुमा लोग कर देते हैं मर्दों में से बाप नहीं। मैं ये नहीं मानता, इसलिए कि रिजाल कुम का मतलब है तुम्हारे मर्दों के।
عام طور پر جس قسم کے مرد تم پائے جاتے ہو ان کا باپ ہونا تو قابل فخر ہے ہی کوئی نہیں. تم الزام لگاتے ہو کہ اس کا بیٹا نہیں ہے اس لیے یہ ادنا ہے. قرآن کہتا ہے کہ جس قسم کے تم لوگ ہو تمہارا باپ ہونا قابل فخر نہیں ہے بلکہ قابل شرم بات ہے. کوئی عزت نہیں ہے اس میں. کن کا باپ ہے یہ؟ رسولوں کا باپ ہے. خاتم کا مطلب باپ بھی ہے. ان معنوں میں بھی ہم لفظ خاتم پر کامل یقین رکھتے ہیں. اور اس میں گہری حکمت ہے. الولد سر لابیہ، یہ محاورہ ہے عربی کا. یہ بیٹا اپنے باپ کا راز رکھتا ہے اپنے اندر. اس زمانے میں تو جینز ایجاد نہیں ہوئی تھی. جو رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب خاتم النبیین کی آیت نازل ہوئی ہے تو یہ دعویٰ بظاہر کسی سائنٹیفک فیکٹ پر مبنی نہیں تھا. مگر آج زمانے نے کھول دیا ہے کہ بیٹا باپ کی صفات سے پہچانا جاتا ہے. اگر محمد رسول اللہ کا بیٹا نہیں ہے کوئی رسول تو رسول نہیں ہے، کیونکہ سب نبیوں کا باپ آپ کو قرار دے دیا گیا ہے. بس خاتم ان معنوں میں کہ اس کی تصویر آپ کو نبیوں میں دکھائی دے گی. ہر سچے نبی میں تم محمد رسول اللہ کا عکس دیکھو گے. اگر نہیں دیکھو گے تو وہ جھوٹا ہے. کتنا عظیم الشان معنی ہے خاتم النبیین. یہ معنی کرنا کہ خاتم النبیین نے دوسرے سب نبیوں کا فیض ختم کر کے اپنا فیض بھی بند کر دیا، سب سے بڑی جہالت ہے. ایسی جہالت ہے جس کو قرآن کھلے بندوں جھٹلا رہا ہے. اب یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ پہلوں کا فیض جسمانی لحاظ سے بھی ختم کیا، روحانی لحاظ سے بھی ختم کیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عالمی نبی بنے. آپ کی ختم سے نبی پہچانے جائیں گے. آپ کی تصدیق سے پتہ لگے گا کہ کون نبی ہے. جس کی ادائیں آپ سے ملتی ہیں وہی سچا ہے. جس کی ادائیں مخالفانہ ہیں وہ سچا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ سب نبیوں کے باپ ہیں آپ. اب اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کا کوئی اپنا روحانی بیٹا بھی ہوگا کہ نہیں، یا وہ بھی ختم کر دیے؟ سب کے فیض ختم کیے، اپنا بھی ختم کر بیٹھے تو ہاتھ کیا آیا دنیا کو؟ اس سے تو پرانے ادنا ہی کافی تھے جن کا فیض جاری رہتا. قرآن کریم فرما رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب نبیوں کا فیض ختم کر کے اپنا وہ فیض جاری فرما چکے ہیں جس میں کسی انعام کی کمی نہیں ہے. یہ آیت کریمہ جو سورہ نساء سے لی گئی ہے، جو ابھی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، یہ ختم نبوت کے موضوع پر ایک آخری فیصلہ ہے، قطعی فیصلہ ہے. سورہ النساء میں یہ آیت ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. جو کوئی بھی اب اللہ اور اس رسول الرسول محمد رسول اللہ کی اطاعت کرے گا، کیا ہوگا؟ اس کو سزا ملے گی، انعام ملیں گے. پہلے نبیوں کی اطاعت کے مقابلے پر کم انعام ملیں گے، یا کم سے کم وہ تو ملیں جو پہلے نبیوں کی اطاعت سے ملتے رہے مگر شان میں ان سے بڑھ کر. یہی دعویٰ یہ آیت کریمہ کر رہی ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو کوئی بھی اللہ کی اطاعت کرے گا اور اس رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. اب صرف یہی لوگ ہیں جن کو اللہ انعام عطا کرے گا، باقی سب کی چھٹی ہوگی. خاتم کا مطلب غیروں کے چشمے بند، اپنا جاری. اب فیض لینا ہے تو اس کے پیچھے لگو. اور ساتھ فرمایا وہ کون لوگ ہیں جن کو انعام ملے گا، لسٹ بیان فرمائیے. من النبیین، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، نبیوں میں سے ہوں گے یہ لوگ. والصدیقین، اور صدیقوں میں سے ہوں گے. والشہداء، اور شہیدوں میں سے ہوں گے. والصالحین، اور صالحین میں سے ہوں گے. وحسن اولئک رفیقا، اور یہ ساتھ جو محمد رسول اللہ کی غلامی سے ملے گا
ये सबसे अच्छा साथ है, इससे अच्छा कोई साथ नहीं। तो इनाम की लिस्ट तो वही है, मगर हसना उलाइका रफीका ने मर्तबा ऊंचा बयान कर दिया। अब तुम पुरानी उम्मतों में कहां रफीक ढूंढते फिरते हो, हसना उलाइका रफीका। अब रफाकत ढूंढनी है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत में आपके गुलामों में पैदा होने वाले नबियों, सिद्दीकों, शहीदों, सालेहीन की रफाकत ढूंढो, इससे बेहतर रफाकत नहीं मिल सकती। इतनी वाज़ेह खुली हुई आयत के बाद आयत खातम नबीन का यह तर्जुमा करना कि आपने सब नबियों को ख़त्म किया सिवाय ईसा अलैहिस्सलाम, और सबका फैज़ ख़त्म कर दिया, साथ अपना भी ख़त्म कर दिया। अब इस उम्मत में कोई नबी आपकी गुलामी में भी पैदा नहीं हो सकता। कुरान का दावा क्या है? गुलामी में पैदा जरूर हो सकता है, मगर सिर्फ नबी नहीं, हर मर्तबा शान, हर मर्तबा इनाम अब मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी से वाबस्ता हो चुका है। सिर्फ नबूवत बंद नहीं हुई, खातम सिद्दीकियत भी बंद है, शहादत भी बंद है, सालिहियत भी बंद है, मगर गैरों की। मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी में न ये बंद, न वो बंद, न वो बंद। बस गुलाम नबी का तो ऐलान कर रही है ये आयत, और बजाय इसके कि पुराने मूसा के गुलाम को मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत का फैज़ रसान बनाओ, अगर गैरत है तो कुरान के इस माने को तस्लीम करना लाजिम है कि जब ज़रूरत होगी मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलामों में से वो उठेगा जिसे खुदा फैज़ नबूवत अता करेगा, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत के दायरे में और गुलामी के सदक़े। ये हमारा अक़ीदा है। अगर ये नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक हक़ के रसूल है तो फिर उस अक़ीदे को पकड़े रखें कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत में तो सब नाकाम हो जाएंगे, मूसा का गुलाम ढूंढना पड़ेगा, नया कुरान लेके आएगा, यानी दोबारा कुरान नाजिल होगा, और आखिरी फैज़ रसान जो दुनिया देखेगी वो ईसा अलैहिस्सलाम होंगे, फिर वो खातम नबीन हुए, ना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह। समझे? हजूर, अब मिस्टर रामनाथ सानी साउथहैम्पटन से सवाल पेश करेंगे। जी। क्या हाल है? खैरियत से? छोटा सा सवाल है मेरा। ये छोटी सी, लेकिन वो तिब्बी मामले में थी। अब मजहबी सवाल करना चाहते हैं? हाँ जी, ठीक है। मज़हब एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से की तालीम देता है, फिर क्या वजह है कि आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं? क्या इसका कोई हल मिल सकता है? इससे पता चलता है कि लड़ने वाले मजहबी नहीं हैं। सीधा साफ जवाब है। खुदा के नाम पर बंदों पर जुल्म की तालीम, उनसे नफरत की तालीम ऐसी है जैसे रोशनी के नाम पर अंधेरे फैलाओ। इसलिए खुदा तो झूठा नहीं है, परमात्मा तो सच्चा ही है। झूठे ये लोग हैं जो कहते हैं हम उस खुदा की तरफ से आए हैं। अगर कोई कहे कि मैं इत्र की दुकान से निकल के आ रहा हूं और सख्त बदबू आ रही है उसमें से, तो आप क्या कहेंगे? इत्र बदबूदार होते हैं? अपने ये झूठा है। ये कोई टोकरी उठा के आया है इत्र की दुकान से नहीं आया। तो ये लोग टोकरी उठाने वाले हैं। ठीक है। ये मुस्लिम टेलीविजन अहमदिया इंटरनेशनल है। मजलिस अंसारुल्लाह यूके की तरफ से मुनक़दा एक मजलिस इरफान जो हुजूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिन नस्ल अज़ीज़ ने 21 अक्टूबर सन 95 को इरशाद फरमाई थी, इस वक्त पेश की जा रही है। मुलाहिज़ा फरमाएं। हजूर, ये सवाल मिस्टर मदन ककरिया साहब जो कूम लेन वेस्ट न्यू मॉल्डन से हैं जी, उनका है, और वो इस महफिल में तशरीफ़ रखते हैं जी, लेकिन उन्होंने मुझे कहा है कि मैं उनका सवाल पढ़ूं। ठीक है, शौक से।
ان کا سوال ہے کہ ہم ہندو بھی خدا کو مانتے ہیں ٹھیک ہے اور اسے اوم کہتے ہیں جی ہمارے عقیدے کے مطابق اوم سب سے پہلا خدا کا نام ہے اس کے بعد ہم ہندو اوتاروں یعنی میسنجرز آف گاڈ کو مانتے ہیں جی ہندو اکثریت اوم کی عبادت